Munchkins, welcome back to my channel. I am Anisha. So today I'm back with another video. So आज का video is kind of a little different. So आज, to be honest, I just came to you guys to just randomly rant about my life and whatever is going on, especially about my 22nd birthday. So I was just feeling a little low, so मैंने सोचा कि let's just come on the internet and like share with you all, because I feel you guys are just my internet besties and it just makes me feel like I'm talking to a best friend and it will just make my heart feel a little lighter. Today basically, जैसे कि आप लोगों को वीडियो का टाइटल देख के समझ में आ ही गया है, आज I'm gonna share a story time video कि like how I celebrated my 22nd birthday. So basically a little backstory about how am I as a person. So बचपन से like birthdays have been such a very big thing in my family. Birthdays मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा important रहता है. So my parents used to literally make sure कि मेरा हर birthday बहुत ही अच्छे से celebrate होता हो और मेरा हर बर्थडे बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट होता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर साल बचपन से आई हैव ऑलवेज सीन दिस इन माय फैमिली. बचपन से ईच बर्थडे में मेरे सारे फ्रेंड्स आते थे, बहुत ही ग्रैंड तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट होता था. लाइक वॉट एवर अ ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन, कोट अनकोट अ ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन जैसे होता है, सो मेरा बर्थडे हमेशा से वैसे ही सेलिब्रेट होता आया है. आई नो बहुत सारे लोग इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन लोगों के लिए बर्थडेज इज जस्ट अ यूजुअल डे, बट आई कैन नॉट रिलेट टू दैट फैक्ट. समवेयर और द अदर आई हैव जस्ट हैड दिस थिंग कि लाइक नो, माई बर्थडेज मीन्स लाइक सब कुछ मेरे लिए, लाइक इफ इट्स लाइक मोर इम्पॉर्टेंट दैन माई वेडिंग डे. आई नो बहुत सारे लोगों के लिए ये थोड़ा सा टू मच लग सकता है, बट yeah, that is just a me thing and I just love the way it is. I always had this pressure कि मैं बहुत ही ग्रैंड तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँ. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे मैं बड़ी होती आई हूँ, लाइक टू बी ऑनेस्ट माई फ्रेंड सर्कल धीरे धीरे छोटा होता आया है. ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजन्स आई हैव लाइक लॉस्ट फ्रेंडशिप्स, फ्रेंड्स, दिस एंड दैट. आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ. सो yeah, later on I found that it was very very needed for my growth and for whatever I am today as a person. That was a healthy like growth needed in my life and I don't regret anything in my life. Like when I was just a high school teenager, जब से like when I was into like 10th के बाद से I have always like you know, मेरे दिमाग में हमेशा से वो प्रेशर रहा है कि लाइक टू जस्ट सेलिब्रेट माई बर्थडे इन द मोस्ट ग्रैंड वे. पहले मैं क्या करती थी, आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल. दे आर गोना मेक माई डे फील स्पेशल, this that lot of wishes कि like people are gonna like friends are gonna come over, celebrate, enjoy my day. जैसे जैसे I have been into college, I have gotten this thing like things have changed in my life. मेरा mindset perspective भी change हुआ है. So basically the thing is अभी it's like कि like कोई celebrate करे ना करे, I take my birthday very seriously. I know like you know happiness is a inner job. This is something I feel through and through कि आपका खुशी का रिमोट आप किसी के ऊपर नहीं दे सकते हो. You being happy has to literally start and end with you. That's it, period. Like I believe in self love and loving yourself सबसे ज़्यादा, because like at the end of the day you are gonna be there for yourself. Basically इस साल का बर्थडे was a little kind of different rather than other birthdays. Other birthdays में कैसा होता था, बहुत बड़े फ्रेंड्स ग्रुप आते थे, we used to just enjoy, chill, party, सब कुछ हम लोग करते थे, बहुत ज़्यादा enjoy होता था. But this birthday was kind of a very like a low key, okay, and a kind of not that very very big thing, but yeah, it was kind of very good as well. So this birthday made me realize we should not pressurize everything on one single day, because आगे आगे आपको पता होगा, like as the story continues you guys will get to know why I'm saying this, because जब एक दिन पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ना, like it doesn't turn out as it is. It was the 27th of April. So मैंने basically कुछ plans करके रखे थे मेरे birthdays के लिए कि रात के 12 बजे I'm gonna go out with my friends, celebrate, cut cake, बाहर हम लोग celebrate करने वाले हैं. But that did not turn out like that. And then सुबह I'm gonna have like a big party रात को. This is how I thought my birthday is gonna be. Life literally had other plans. So 26th रात को like 10 साढ़े 10 बजे I decided कि मैं बाहर जाने वाली हूँ. मैं बाहर
थोड़ा सा घूमूंगी, हम लोग घूमेंगे, थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, देन आई विल कट द केक, बाहर खाना वाना खा के विल जस्ट कम बैक। द थिंग इज लाइक एज मैनी ऑफ यू गाइज विल ऑलरेडी नो, इलेक्शंस चल रहा है, इलेक्शंस की वजह से लाइक रोड्स ब्लॉक है, रोड्स में बहुत ही ज़्यादा क्राउड है एंड बेसिकली सो मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना रूम डेकोरेट करूँगी पूरे तरीके से, जो कि मैंने किया। डेफिनेटली दैट इज़ समथिंग आई डू विदाउट फील। आई डेकोरेटेड दिस ब्यूटिफुल रूम ऑफ माइन, इसको मैंने अच्छे से डेकोरेट किया, सेलिब्रेट किया बर्थडे। सेलिब्रेट करने के लिए मैंने रूम बहुत ही अच्छे से बैलून्स, कैंडल्स एंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू कुड जस्ट थिंक ऑफ, केक्स आया था, अ लॉट ऑफ थिंग्स केम। Like this year I wanted to be with my parents for my birthday, but eventually that was just not possible because you know next year I'm going to be somewhere else for my birthday in some other city, so wahan se parents ke paas jana is not that possible, so I couldn't stay with my parents. That is somehow I was just missing home a little too much on my birthday, to be very honest. I was being a little homesick because इफ़ यू नो आई एम बंगाली, और हमारे घर पे बहुत ही ज़्यादा बंगाली हाउस होल्ड में बर्थडे, लाइक बंगाली पीपल टेक बर्थडे इज़ वेरी 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 सीरियसली। वी हैव अ लॉट ऑफ रिचुअल्स गोइंग ऑन सुबह से शाम से, एंड देन वी हैव दिस खीर, मम्मी के हाथों का खाना इज़ लाइक नॉन निगोशिएबल फॉर अस, बट इलेक्शंस की वजह से वी कुड नॉट गो, लाइक हम लोग नहीं जा पाए। मी अलॉन्ग विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिसाइड किया बाहर सेलिब्रेट करेंगे, सो वो हो नहीं पाया। सो मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई थी कि यार आई रियली वॉन्टेड टू बी आउटसाइड, अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। फिर मैंने बहुत ज़्यादा खुद को समझाया कि नहीं, इलेक्शन का टाइम है, इट्स नॉट सेफ टू बी आउटसाइड रात के टाइम में, एंड इन जनरल ऑल्सो लाइक आई वॉज नॉट डूइंग वेरी वेल ओके ड्यूरिंग माई बर्थडे। उसके पहले मेरा बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एंड कफ हो गया था। इट जस्ट वेंट टू सच अ पॉइंट कि आई वॉज लाइक कि कुछ भी हो जाए, आई हैव टू सेलिब्रेट द बर्थडे, दैट प्रेशर वॉज ऑलवेज देयर ऑन माई हेड। And the thing is, we celebrated a very cutesy, low-key birthday in my beautiful room only. Room में हम लोगों ने सब birthday celebrate किया, and then birthday celebrate करने के बाद then it was like okay, but I was somewhere or the other I was like not that happy। और decorations भी हम लोग अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से कर नहीं पाई जितना मेरे को करने का मन था। दिमाग में चल रहा था कि यार मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से Pinterest से वो लेके मैंने डिसाइड किया पूरा रूम डेकोरेट होगा विद कैंडल्स, बलून्स, रोजेस एंड वॉट नॉट। टू बी ऑनेस्ट क्या क्या मैंने डिसाइड किया था, बट somehow it did not turn out the way it was supposed to be at night, and I was not very happy, but yeah I was like okay ठीक है, अभी तो just birthday शुरू हुआ है, अभी पूरा दिन बचा हुआ है, अभी बहुत ही अच्छे से I'm gonna celebrate, I'm gonna make it in the morning, सुबह भी I'm gonna make it बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट होगा, एंड इट्स जस्ट गोना बी अ ब्लास्ट। सुबह देन मैं उठी प्रॉपरली, एंड देन आई वाज लाइक, हमारे उधर एक रिचुअल होता है कि हम लोग हर टाइम बर्थडे वाले दिन मॉम डैड मी हम लोग सब मंदिर जाते हैं, पूजा करवाते हैं। सो दैट थिंग हैज़ जस्ट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन मी समवेयर और द अदर। वो चीज़ मैंने देखते देखते वो आदत मेरे अंदर भी हो गया है कि लाइक बर्थडेज के दिन सुबह विदाउट एनी फील हम लोग मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, एंड देन ओनली वी स्टार्ट आवर ब्यूटीफुल डे। यू गाइज हैव नो आइडिया हाउ सिक आई वॉज। मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर से एकदम बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रही थी बिकॉज आई वॉज फुल ऑफ कफ कोल्ड, एकदम बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, एंड आई वॉज जस्ट फीलिंग नॉट गुड। बट मैंने आई वॉज जस्ट वर्किंग ऑन माई यू नो माइंडसेट। मैंने अपने माइंड को समझाया कि नहीं, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। इट वॉज जस्ट कॉन्स्टेंट प्रेशर विच आई रियलाइज लेटर ऑन इज़ नॉट राइट। पहले खुद के हेल्थ को ध्यान देना चाहिए, देन एवरीथिंग जस्ट कम्स सेकेंडरी। वो मैंने बहुत बाद में रियलाइज़ किया टू बी ऑनेस्ट, बट अंदर के यू नो मेंटल स्ट्रेंथ से मैं सिर्फ परफॉर्म कर रही थी बिकॉज माई फिजिकल स्ट्रेंथ वॉज लिटरली जीरो टू। सो सुबह आई वॉज लाइक मंदिर जाना है, सो आई डिसाइडेड कि हमारे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मंदिर है, दैट इज़ दक्षिणेश्वर मंदिर। सो आई डिसाइडेड कि मैं उधर जाने वाली हूँ, दर्शन लूँगी, भगवान से पूजा होगा, पूजा करवाएंगे, बर्थडे के लिए स्पेशल पूजा होगा, एंड देन प्रसाद खा के एंड देन आई विल बी कमिंग होम। सो विच थैंकफुली जस्ट हैपेंड। मेरे को जाना था, मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी उसके लिए जाने के लिए, बट स्टिल समवेयर और द अदर वी जस्ट मैनेज कि भगवान के पास जाए, थोड़ा सा पूजा करवाए, एंड दैट वाज जस्ट so successful, and that was just the best part of about my birthday.
एंड देन एज द डे ग्रीव आई वाज जस्ट नॉट फीलिंग दैट वेल। मैं उसके बाद आके फिर घर पे ही बैठी थी। आई वाज लाइक यार व्हाट काइंड ऑफ बर्थडे इज दिस, मैं हर बर्थडे पे बाहर जाती हूँ। एंड वन मोर थिंग अबाउट मी इज लाइक इस बर्थडे में मेरे पास थोड़ा सा बजट थोड़ा सा टाइट था टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हर बर्थडे में माई रिचुअल इज लाइक मैं सुबह जाती हूँ कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट खाने, because I am a continental breakfast girly through and through. I love continental. I love my sunny side ups with chicken sausages, baked beans, baked tomatoes, fruit juices. I love this. यहाँ पे एक पर्टिकुलर कैफे है जिसमें मैं हर साल जाती हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ I just go to that cafe every single day on my birthday and I just love the ambience, vibe, food. I just love it. साल because as you many of you might already know कि मैंने फ़ोन लिया है, फ़ोन के पीछे बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है। उसके लिए मेरा बजट इस साल के बर्थडे का बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टेंट था। सुबह मैंने डिसाइड किया था कि मंदिर से आने के बाद मैं उस कैफ़े में जाने वाली हूँ, देन आई एम गोना हैव माई फूड। मैं अपने बर्थडे को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेती हूँ और बहुत ही अच्छे से प्लान करती हूँ। लाइक आई हैव दिस प्रॉपर माइंड सेट की मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, then lunch, then proper dinner, party. This is the kind of scene working on in my head. Okay. सुबह हम लोगों का उधर जाने का प्लान था and the plan got cancelled. मैं नहीं जा पाई and that was also such a big reason कि मैं इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था मेरे को। I was just somehow explaining myself कि नहीं मेरे को नहीं रोना है, it's my beautiful day, it's one of the bestest days of my life, it's a very special day to me, it's my birthday. So मेरे को किसी भी हालत में नहीं रोना है, बट आई वॉज जस्ट गेटिंग सो इमोशनल। अंदर से मेरे को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट लग रहा था कि यार मैंने खुद को प्रॉमिस किया था बट मैं ये कर नहीं पा रही हूँ। आई वॉज जस्ट फीलिंग सो बैड फॉर माई सेल्फ। सो उधर से आने के बाद फिर मैं घर पे बैठी थी बहुत देर तक। दूसरे साल आई ऑलवेज हैव दिस बर्थडे दिस दैट व्हिच आई नो it's weird, it might sound weird to a lot of people. मेरे लिए इस साल मतलब बर्थडे एक नॉर्मल डे जैसा ही लग रहा था। मेरे को बर्थडे वाला प्रॉपर कोट एंड कोट बर्थडे वाला फील तो नहीं आ रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर मैंने खुद को कैसे तैसे करके समझाया कि नहीं इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, इट्स फाइन, इट्स जस्ट ओके, इट्स योर बर्थडे, बी हैप्पी, सेलिब्रेट। और उसके बाद आई थॉट कि मैं क्या करूँ, मैं घर पे ही बैठी हूँ। सो देन आई डिसाइडेड टू लेट्स गो फॉर लंच। लंच के लिए लाइक हमारे एज यू ऑलरेडी नो दैट आई एम बंगाली, और हमारे बंगाली कल्चर में हम लोग लंच बर्थडे लंच को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। वी हैव दिस फुल बंगाली क्विजीन विथ ऑल द काइंड ऑफ फेवरेट फूड्स। वी हैव दिस आशीर्वाद काइंड ऑफ रिचुअल गोइंग ऑन जो हमारे पेरेंट्स करते हैं, एंड इट्स ओके एंड इट्स कम्प्लीटली ओके इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग एज प्लान। आई जस्ट वेंट आउट फॉर लंच टू दिस वेरी ब्यूटिफुल रेस्टोरेंट जहाँ पे मैंने पूरा एकदम ऑथेंटिक बंगाली क्विजीन खाया। And I just went with one or two of my very close friends, those who mattered to me. उन लोगों के साथ ही मैं गई बाहर। These people just literally made my day. They make sure कि I don't feel bad. So like my friends, they did all this आशीर्वाद ritual जो भी होता है, they just did that for me. And somewhere I was feeling happy that you know like whatever I have done in life, I have earned some good people in my life. सो उधर मैंने ऑथेंटिक बंगाली खाना खाने के बाद आई वॉज लिटरली अब फीलिंग अ लॉट बेटर कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। मंदिर गई मैं, भगवान का दर्शन हुआ, देन आई वेंट। भले मैं कैफे जाके खा नहीं पाई, मैं आई वोर अ ब्यूटिफुल येलो ड्रेस। इफ आई गेट पिक्चर्स आई पुट हियर एंड देयर पिक्चर्स ऑफ दैट ड्रेस एंड इट वॉज जस्ट लुकिंग सो ब्यूटिफुल ऑन मी। बहुत ही अच्छा लग रहा था वो देखने में, एंड आई क्लिक्ड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स। And then I was like, yeah, okay, now this is going in a birthday way. But अंदर से like only I know and God knows how sick I was. But I was in this constant pressure कि यार मेरे को कैसे भी करके ये दिन अच्छे से सेलिब्रेट करना है, because whatever happens ये दिन साल में एक ही बार आएगा. So I was having that constant pressure in the back of my mind. Being on this motivation कैसे तैसे करके मेरे को आज का दिन स्पेशल करना ही है, whatever happens, which is like very wrong. We should not pressurize ourselves इतना भी ज़्यादा। उसके बाद हम लोगों ने लंच किया, फिर then I came back and then now is the main time for the dinner. तो डिनर के लिए I had a lot of plans, बहुत ही अच्छा जगह बुक किए थे।
जहाँ पे ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स वेर कमिंग। आई जस्ट इन्फॉर्म्ड ऑल ऑफ देम, एक थीम था, सब पार्टी वार्टी का अरेंजमेंट हो गया था। बट द थिंग इज लास्ट मोमेंट पे मेरे को पता चला कि नहीं, बहुत सारे प्लान्स कैंसिल हो गए। लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स कैंसिल ड्यू टू देयर पर्सनल ओन रीजन्स। जो मैंने जगह बुक किया था वो भी कैंसिल हो गया बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वेर नॉट कमिंग एंड जस्ट थिंग्स वेंट सो रॉन्ग। सो जैसा मैंने सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। So last minute में I had everything planned, so I just broke down. I was like feeling so sad, but I just promised myself, I just controlled my tears so badly, like I just controlled my tears somehow कि नहीं, I'm not gonna cry on this day and I'm not gonna make this. But अंदर से I was, first of all I was very sick. उसके लिए अंदर से मेरे को बहुत ही ज़्यादा अंदर से बीमार तो फील हो ही रहा था, ऊपर से थिंग्स वर नॉट गोइंग एज प्लान्ड। सो उसके लिए भी मैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था मेरे को। आई वॉज नॉट एट ऑल फीलिंग वेल। लास्ट मोमेंट पे देन आई डिसाइडेड, लाइक मी एंड अलॉन्ग विद 4-5 ऑफ माई फ्रेंड्स, वी जस्ट डिसाइडेड दिस ब्यूटिफुल प्लेस, जो कि लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने देखा कि वहीं पे जाके लेट्स हैव दिस लोकी काइंड ऑफ सेलिब्रेशंस। सो या, एंड वन मोर थिंग, इस साल मैंने सोचा था कस्टमाइज केक आएगा, मैंने डिसाइड किया था, लॉट ऑफ थिंग्स वेर जस्ट प्लान, बट लास्ट मोमेंट पे कस्टमाइज केक भी नहीं आया एंड आई वॉज फीलिंग सो बैड एंड सो गिल्टी। मैं खुद को कंटिन्यूसली ब्लेम कर रही थी यार कि लाइक वाई एम आई नॉट बीइंग एबल टू डू दिस, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लाइक व्हाट रॉन्ग हैव आई डन। मैं कंटिन्यूस अपने आप को ब्लेम कर ही जा रही थी, रादर देन टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ कि मैं इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मैं उसके ऊपर मैं कॉन्सेंट्रेट करूँ। तबीयत ख़राब तो मेरा तब दिमाग में ही नहीं आ रहा कि मैं आई वॉज ब्लेमिंग द सिचुएशन, आई वॉज ब्लेमिंग द everything, I was blaming everybody around and I was just ranting to my friends, which is also very bad. I was just not happy. I was just feeling frustrated, I was feeling angry, I was feeling bad कि मैंने जैसा decide किया था, why are things not going in my order? Because when it comes to things I am very particular. कुछ चीज़ों के लिए I am very particular कि कुछ चीज़ें मेरे को अपने हिसाब से ही चाहिए, and that is what makes me happy, to be honest. Last month baby, me along with 4-5 of my close friends, we just had dinner and it was a very low-key kind of celebration. And then whatever happened is like unexpected. कैसे तैसे करके birthday गया. I had just clicked a lot of beautiful photos. If you guys follow me on my Instagram, you'll definitely see my photos have turned out the best. That was the best part of the birthday कि photos बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था because the dress I was wearing was so it was such a beautiful royal blue shimmery kind of sexy cocktail dress. हम लोग गए, we just went, it was just a simple low-key kind of celebration. हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया, खाना खाया, and yeah, that was just it for my birthday. But so basically plot twist just starts here. So the moment I came back home, और जब मैं उधर से आई, जब the moment it was just, you would not believe it. It sounds so like it just sounds so coincidental or whatever it is, I don't know. But जैसे ही हम लोग उधर से निकले, सब खाना वाना ख़त्म करके, we just came back and I just sat on the cab. My full body just crashed. मेरा full body pain होने लगा and I was just feeling so weak. ज़्यादा weak, कफ और कोल्ड, और मेरा आवाज़ एकदम बंद हो गया. My voice just simply went. एंड कैसे तैसे करके माई फ्रेंड्स हेल्प मी गेट होम, और मैं घर पे आई. उसके बाद आई वॉज अनेबल टू मूव. मैं लिटरली हिल नहीं पा रही थी, मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था. आई वॉज just lying on the bed the whole time. मेरे को इतना ज़्यादा फीवरिश लग रहा था. I was feeling so damn tired. I was feeling so sleep deprived. इतना ज़्यादा weak, painful. So उसके बाद it literally took me 2 to 3 days to recover from that. And that is the time when I realized कि like everything is fine, birthdays are fine, and this birthday literally made me realize कि we should not put the pressure on one single day. काश मैं अगर उस दिन उतना pressure ना देके अपने health को prioritize करती over my birthday, और उसका celebration शायद मैं किसी और दिन उसको celebrate करती, तो मेरा इतना ज़्यादा हालत ख़राब नहीं होता, मेरा तबीयत ख़राब इतना ज़्यादा definitely नहीं होता. Somewhere or the other it was just
needed or maybe like God wanted to show me like हम लोगों को, but everything is fine, but first of all we should keep prioritizing our health के आगे कुछ भी नहीं आता है. So this birthday literally made me realize a lot of things, and moreover मेरे को बहुत ज़्यादा मन था कि मैं अपना बर्थडे भी अच्छे से ब्लॉग करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट यही सब रीजंस की वजह से वो नहीं हो पाया. ये चीज़ मेरे को बहुत ही अंदर अच्छा नहीं लग रहा था. आई जस्ट लिटरली वांटेड टू शेयर इट विद समबडी, एंड व्हाट बेटर देन यू गाइज, बिकॉज यू गाइज आर लिटरली माई एक्सटेंडेड फैमिली ऑन द इंटरनेट. मे बी अगर उस दिन थोड़ा सा मैं समझदार बनती तो मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता. खुद को ठीक रहना चाहिए बर्थडे भी सेलिब्रेट करने के लिए. दैट वॉज माई वेरी लॉन्ग स्टोरी टाइम. आई गेस मैंने बहुत ही ज़्यादा रैंट कर दिया है, बट आई वॉन्ट कि जो गलती मैंने किया है वो आप लोग ना करो. इसके लिए आई रियली वॉन्टेड टू शेयर द स्टोरी विद यू गाइज. या नाउ आई फील अ लॉट लाइटर. I hope many of you guys will relate with me whatever I'm trying to say. If you guys want to hear more story time videos, please let me know, because मेरे पास बहुत ही ज़्यादा interesting hot kind of stories है. So that's it for today's video guys. If you guys like the video, don't forget to hit the like button. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like कर देना. Share it with your friends, family, girlfriends, cousins, siblings, सबके साथ ये वीडियो को शेयर कर देना. And if you guys like my content, don't forget to hit the subscribe button. वीडियो को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेटेड कर देना, ताकि मैं और भी अच्छे से आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियोस ला पाऊँ. And please hit the notification bell beside the subscribe button, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाए. So this is me Anisha signing off. See you guys in another video. Till then, take care, stay happy, and bye bye.